Jai friends. So dear friends, today we are going to discuss NCERT textbook class 10th mathematics chapter 6 triangles we are studying. इस chapter 6 में हम triangle पढ़ रहे हैं. In this triangle, today we are going to discuss the solution of the sums of exercise 6.5. Right? I think before this we have completed in our previous lecture, and let us see how many questions we can complete in this exercise in today's lecture. So friends, see the first sum. First question is given: sides of a triangle are given below. Determine which of them are right triangles, and in case of right triangles, write the length of hypotenuse. So dear friends, as we have read in Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to the sum of the squares of other two sides, and hypotenuse is the longest side. Hypotenuse is the longest side, right? Okay, so let us start solving. These four parts are given in this. In first, the solution of this one, just see. In this, let that what I said, you have to take the longest side as a hypotenuse, as a AC, and the other two sides, let AB is equals to 7 centimeter, BC is equals to 24 centimeter, and AC is equals to 25. So first of all, we need to find out, as you know that by Pythagoras theorem, AB square plus BC square is equals to AC square. Then AC is the hypotenuse. If they both are equal, means AB square plus BC square is equals to AC square, then it is a right angle triangle also, and AC is the hypotenuse. So let us find out the value of AB square plus BC square. Okay, so AB square means 7 square plus BC is 24 square. So square of 7 is 49 plus BC square is 576. 576. When you add it, 6 plus 9 is 5. 6 plus 9 is 15. 5, 7, 1, 8, 8, 4, 12, carry 1, 6, 1, 5. So we got AB square plus BC square is equals to 625. Now let us find out the square of AC, and AC, since AC is equals to 25, so AC square is equals to 25 square, which gives you 625. And are they equal? So therefore you are getting the result that AB square plus BC square equals to AC square. Why? Because it is also 625 and this is also 625, right? As they are equal, therefore ABC is right triangle. ABC is right triangle, angle B. Therefore result we are getting triangle ABC is right triangle in which measure angle B is equals to 90 degree and side AC is hypotenuse. AC is its hypotenuse. Right friends? Okay, so similarly we have to solve the second part of this. Okay, this is second part. In this, let AB is equals to 3, BC is equals to 6, and AC is equals to 8. AC is equals to 8. Now find the value of AB square plus BC square. So AB square plus BC square. AB is 3 square. BC is 6 square. So 3 3s are 9 and 6 6 are 36. After adding, we will get
45, right? Then find the square of AC. Since AC is equals to 8, so square of AC, therefore square of AC is equals to square of 8, which is 64. Are they equal? It is 45 and it is 64. It means they are not equal. Since they are not equal, so you just write down, since AB square plus BC square is not equals to AC square. अब ये दोनों equal नहीं है, it means they are not following the Pythagoras theorem. If it is not equals to AC square, therefore triangle ABC is not a right triangle. Therefore triangle ABC is not a right triangle. Right friends, this is not a triangle. And if it is not a triangle, so no need to write the hypotenuse of this. What is? Why? Because in case right triangle, अगर ये right triangle होता है तो हमको hypotenuse बताना है. जब ये right triangle है ही नहीं तो हमें इसके hypotenuse को बताने की ज़रूरत नहीं, because will not get the hypotenuse. Okay? चलो. Now let us see the next third part of this. In third, again you just let, in the solution of this, let AB is equals to 50, BC is equals to 80 and AC equals to 100. Right friends? Same as you just find the value of AB square plus BC square. It means AB means 50 square plus BC means 80 square. Square of 50, 5 5s are 25, 2500, and 8 8 is 64, 6400. Adding this, 6 4 4 5 9 6 to 8, 8900 we got the sum of AB square plus and BC square. Now find the square of AC square. Therefore AC square equals to 100 square and square of 100 is 10,000. Square of 100 is 10,000. Are they equal? It is 8,900 and this is 10,000. So they are not equal. So write, since AB square plus BC square is not equals to AC square. So as it is 8,900 is not equals to 10,000. Why 8,900 is not equals to 10,000? Therefore the result, triangle ABC is not a right triangle. Right friends? So in third part also we are getting the result that this is not the sides of a right triangle. Now let us see the fourth part of this. अभी fourth part discuss करते और इसको decide करते, are they right triangle or not? Okay, so let's see. Let AB equals to 5, AB is equals to 5, BC is equals to 12 and AC is equals to 13. Right? Now find AB square plus BC square. So therefore AB square plus BC square. Measure of AB is 5 square plus 13 square. 5 5s are 25 plus 13. Sorry, BC is 12. Sorry, square of this is 144. Adding this we will get 169. Right? Now find the square of AC. And AC square is equals to 13 square, which is equals to 169. And here we are getting both are equal. 69, 169 and 169. Therefore the result is
since AB square plus BC square equals to AC square, therefore what you can say, triangle ABC is a right triangle, कौन सा ट्रायंगल है? इट इज अ राइट ट्रायंगल, एंगल इन विच एंगल B is 90 degree, angle B is 90 degree and AC is its hypotenuse, AC is its hypotenuse. Right friends, what was there in the question? क्वेश्चन में दिया था कि अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस क्या होगा? अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस AC होगा, और AC का मेजर क्या है? 13 सेंटीमीटर. ये बात याद रखना, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वही हाइपोटेनस होती है, एंड द फ्रंट एंगल ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज राइट एंगल, देयर इन अ right angle triangle. Right friends, so I hope you all understood this all 4 questions. आप easily इसको solve कर लेंगे. If you are facing any problem, simply पाइथागोरस थ्योरम को के एप्लीकेशन को अच्छे से समझना. ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. पहले तो आप सभी साइड्स को सपोज कर लेना. क्यों? कि these 3 sides are the sides of a right angle triangle are AB, BC and AC, means triangle ABC के sides हैं. अब हम उसको डिसाइड करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, और क्यों. स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड शुड बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 sides. If you are getting equal, then it is a right triangle. If it is not equal, then it is not a right ट्रायंगल. और अगर राइट ट्रायंगल नहीं है तो हमें हाइपोटेनस बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर राइट ट्रायंगल है तो ही हम हाइपोटेनस बताएंगे. इट मीन्स इसमें AC हाइपोटेनस है. एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ AC? AC का मेजर क्या है? AC का मेजर 25. इट मीन्स दिस साइड 25 सेंटीमीटर इज द हाइपोटेनस ऑफ दिस साइड 25 सेंटीमीटर इज द measure of its hypotenuse. Right? In this there was not hypotenuse in this. In this 13 centimeter is the measure of hypotenuse. Right friends? ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट अभी स्टूडेंट्स? इन दिस सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन triangle PQR is a right triangle at point P, means angle P is 90 degree. This angle P is equals to 90 degrees given in this. Okay, after that M is a point on QR. If P is 90 degrees, so QR is the hypotenuse of this right triangle. So given that M is a point on this hypotenuse such that this PM is perpendicular on QR. So इस टाइप का फिगर आपको फ्रेंड्स हम थ्योरम में सिखा चुके हैं, थ्योरम 6.7 में, थ्योरम 6.8 में, दोनों में. ओके, देन सो दैट PM स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू QM मल्टीप्लाइड बाई MR. राइट, ये आपको रूल नंबर 3 हमने आपको सिखाया था, और ये कैसे आया था? आप जब ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो वहाँ पे हमने क्या किया था और यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा. देयर वी हैव रेड, सपोज दिस एंगल इज एंगल थीटा, इसको हमने थीटा सपोज किया था. राइट, इसको हमने क्या सपोज किया था? एंगल थीटा सपोज किया था. सो लेट अस सी in the solution we are going to prove this one. Okay, so you need to write down such that given in the given part triangle PQR in which angle P is equals to 90 degree and PM is perpendicular on QR. These things are given. Okay, after that to prove, you are going to prove that. To prove, हम प्रूव करने क्या चल रहे हैं? दिस PM स्क्वायर इक्वल्स टू दिस PM मीन्स प्राइम मिनिस्टर नहीं, PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM मल्टीप्लाइड बाय MR. आपके टेक्स्ट बुक में मल्टीप्लिकेशन इस तरह दिया है, सो वी कैन राइट MR. आप इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बिकॉज डॉट इज ऑल्सो
known as product of this. Okay, so let us see the proof in this. तो इसका प्रूफ देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपेयर दीज टू ट्रायंगल्स और इसको सिमिलर प्रूव करना होगा. और कौन से दो ट्रायंगल्स? द टू स्मॉलर ट्रायंगल्स. इन दोनों स्मॉलर ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, उससे हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए. ठीक है. सो टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, फर्स्ट वी हैव टू सी विच सिमिलैरिटी वी कैन अप्लाई इन दीज. ओके, इन ट्रायंगल व्हाट, अभी आपको पहले ही पता है कि पी क्यू आर क्या, एक राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल P 90 डिग्री है. एंगल R हमने थीटा सपोज कर लिया है. ओके, सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, in triangle PQR, angle P is equals to 90 degree. It is given. It is given in your question. Right friends? This is given. Any confusion? Okay. फिर आपने एंगल R को थीटा सपोज कर लिया. So let angle R is equals to theta degree. If angle R is theta, so we need to find out measure angle Q. Okay, so in triangle PQR, measure angle P plus measure angle Q plus measure angle R equals to 180 degree, and this is why angle sum property. ये कैसे? angle sum property. Right friends? Any problem? Okay. एंगल P इज 90 डिग्री. एंगल Q का मेजर हम फाइंड करने जा रहे हैं. एंगल R हमने सपोज किया थीटा डिग्री इक्वल्स टू 180. सो एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा. सो 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा. ये किसका मेजर आया? एंगल Q का मेजर आया. कौन से एंगल का मेजर? मेजर ऑफ एंगल Q. ठीक है, मीन्स मेजर ऑफ दिस एंगल. इसका मेजर हमको मिल गया 90 माइनस थीटा. ठीक है फ्रेंड्स, किस ट्रायंगल को अप्लाई किया हमने? ट्रायंगल PQR को लिया था. कौन से ट्रायंगल को लिया था? ट्रायंगल PQR का. गॉट इट? ओके. अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में PMR में. एंगल R इज इक्वल्स टू थीटा, एंगल M इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये एंगल M का मेजर क्या है? 90 डिग्री. सो सिमिलरली यू कैन सी दैट द मेजर ऑफ एंगल MPR, ये भी क्या आ जाना चाहिए? इसको फाइंड करके दिखाते हैं आपको. सो इन ट्रायंगल PMR, इन ट्रायंगल PMR, इन ट्रायंगल PMR, right, measure angle M is equals to 90 degree and angle R is equals to theta. ये हमने सपोज किया है. राइट? सो लेट अस फाइंड आउट बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल P MPR you just write down. Measure angle MPR plus angle M which is 90 degree plus angle R which is theta degree is equals to 180 by angle sum property. So therefore measure angle MPR equals to 180 minus 90 minus theta. So measure angle MPR is equals to 90 minus theta. MPR कौन सा एंगल का मेजर आया? MPR. MPR मीन्स, इसको देखते हैं, which one is MPR? MPR means this angle. MPR means this angle. और इसका मेजर आ गया 90 माइनस थीटा. ठीक. अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर सकते हैं. कौन से दोनों ट्रायंगल? PMQ एंड PMR. इन ट्रायंगल PMQ एंड PMR. नाउ इन ट्रायंगल QPM and triangle PMR. PMR.
ध्यान से देखना दोस्तों, इसका m इसके m के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, लेकिन इसका q इसके p के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। सो अगर आप क्यू एम पी से स्टार्ट करते हैं तो आप पी एम आर लिखेंगे बाई करस्पॉन्डिंग साइड्स। व्हाट वी गॉट, ट्रायंगल क्यू एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब क्यू एंगल 90 माइनस थीटा के इक्वल है, तो इसका कौन सा एंगल 90 माइनस थीटा के इक्वल है? एंगल पी। तो आप पी से स्टार्ट करेंगे, पी एम एंड आर यू नीड टू राइट डाउन, पी एम एंड आर बाई एंगल सिमिलैरिटी। राइट फ्रेंड्स, एनी कंफ्यूजन? इस क्वेश्चन को हम बार बार सॉल्व कर रहे हैं, ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। ओके, चलो, नाउ एज दे आर सिमिलर, so their corresponding sides must be in same ratio or in proportional. So QM means what you have taken, QM is this one upon PM is equals to MP upon MR equals to QP upon PR. These are the rules. Okay, QM upon PM equals to MP को आप PM भी लिख सकते हैं, PM upon MR। तो आपको थर्ड लिखने की जरूरत नहीं। Why? Because with these two we are getting our result. इन दोनों से ही हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। QM अपॉन PM इक्वल्स टू MP था, यहाँ पे MP था, तो MP के प्लेस पे हम PM लिख सकते हैं। क्यों PM लिखा? क्योंकि यहाँ पे PM मिल रहा था। बात सुन भाई, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट PM इंटू PM इक्वल्स टू QM मल्टीप्लाइड बाई MR। कैसे? PM इंटू PM क्रॉस मल्टीप्लाइड, दिस इंटू दिस into this, QM into MR. Now PM into PM is equals to PM square equals to QM multiplied by MR. यही हमको प्रूव करना था। So this is proved friends. Right? Any confusion? This we have proved in theorem 6.7 also and in Pythagoras theorem also. तो ये बार बार क्यों पूछा जा रहा है? Why? Because this is important. इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए कि हम कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे और सिमिलर प्रूव करने के बाद ये आइडेंटिटी हमें कैसे आएगी। अंडरस्टूड? तो इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। And in mathematics it suits perfectly. This you keep it in mind. Therefore if you are getting this PM square is equals to QM multiplied by MR, तो हमने आपको वर्ड्स में भी ये सिखाया था, this PM is called geometric mean of QM and MR. So in words also you can write down PM is called geometric mean of, therefore PM is called geometric mean of QM and MR. राइट फ्रेंड्स, आई बात समझ में आपको? यह हम आपको थ्योरम 6.7 में सिखा चुके हैं। यहाँ आप अपने बोर्ड पे आप अपना थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन देखने से आपको कोई थ्योरम जरूर लर्न हो रहा होगा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि इस टाइप का फिगर, और ये प्रूव दैट हमने ज़रूर सीखा है। याद आया कुछ आपको? आपके प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम 6.7 में ये कंप्लीट क्वेश्चंस
आपको बता चुके हैं, आपको सिखा चुके हैं। बस देयर एंड हियर, देयर मीन्स इन 6.7 एंड इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 अ लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर। वहाँ पे और यहाँ पे सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस के ये जो लेटर्स हैं ये चेंज हैं बस, बाकी दैट ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। ये तीनों आइडेंटिटीज दैट AB इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ BC एंड BD, AB इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ BC एंड BD, ये भी हम आपको सिखा चुके हैं। देन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC, इट मीन्स दिस AC इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ BC एंड DC, जो कि अभी इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में सीखा है और आपको थ्योरम 6.7 में भी बता चुके हैं। ओके, नाउ AD स्क्वायर मीन्स दिस साइड इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD into CD, it means this AD is the geometric mean of BD and CD. These three identities once again you are going to learn but in a different form। एक छोटा सा डिफरेंस आपको दिख रहा है फिगर का, तो उससे आपको घबराना नहीं। फिगर कैसे भी आपको राउंड करके किसी भी शेप में दिया जा सकता है। यहाँ पे भी आपको 3 राइट ट्रायंगल्स मिल रहे हैं और उन्हीं तीनों राइट ट्रायंगल्स के 3 पेयर्स को कंपेयर करेंगे। दोज 3 पेयर ऑफ राइट ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, गिव्स यू दीज फॉर्मूलाज इजीली। ठीक है, सो आई होप, मुझे ये नहीं लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस बताने की ज़रूरत है, बट इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना जरूरी है, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से समझिएगा एक बार फिर। ठीक है, सो द सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू डू एज वी आर गेटिंग 3 राइट ट्रायंगल्स इन दिस। सो उन्हीं 3 पेयर्स ऑफ राइट ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करेंगे और वी कैन गेट दिस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BD। इसको वर्ड्स में हमने आपको बताया था, क्या कहते हैं इसको, AB इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ BC एंड BD। सेकेंड, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC, इट मीन्स AC इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ BC एंड DC। एंड थर्ड, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू CD, इट मीन्स AD इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ BD एंड CD। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC एंड BD, इस रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन से 2 ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। सो AB स्क्वायर आपको फाइंड करना है एंड AB इज कमिंग इन दिस ट्रायंगल, तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बिग ट्रायंगल ABD, कौन सा, ABC को BAD से कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट प्रूविंग दीज 3 रिजल्ट्स। हमने क्या बताया, इसको आप वर्ड्स में जरूर लर्न रखिएगा। दिस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BD, सो इट इज सेड टू बी AB is geometric mean of AB is geometric mean of AB is geometric mean of BC and BD, BC and BD, right? Similarly, you can say AC is the geometric mean of it is to be said as AC is the geometric mean of BC and DC, and third result is AD is geometric mean of BD and CD. AD is the geometric mean of BD and CD. These results we have discussed already. ठीक है, हम इन सबको, it is in mathematics form, it is in words form,
यू हैव टू लर्न इट, राइट। इसको लर्न रखना। ज्योमेट्रिक मीन क्यों बोला जाता है, इसके भी पीछे रीज़न है जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। इट इज़ इन देयर इन क्लास 11th, so that we cannot explain these are the symmetric mean. How it is symmetric mean known as? कभी टाइम मिलेगा इन रिवीजन, सो वी विल डिस्कस व्हाट आर द सिमेट्री मीन, ठीक है। उस सिमेट्रिक मीन को भी हम समझेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट प्रूविंग दीज 3 रिजल्ट्स। इन तीनों रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे। हमने आपको क्या बताया, AB स्क्वायर इक्वल्स टू, AB स्क्वायर इज द सिमेट्रिक मीन ऑफ BC एंड BD। इसको लाने के लिए आप ABC को कंपेयर करोगे BAD से। कौन से ट्रायंगल, ABC को हम BAD से कंपेयर करेंगे। ओके, सो लेट अस सी द प्रूफ ऑफ दिस फर्स्ट रिजल्ट, राइट। सो टू अंडरस्टैंड द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करने चल रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD लेते हैं, BAD, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, ये दोनों सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं उसको समझते हैं। तो ABC में देख रहे हैं एंगल C 90 डिग्री है, BAD में कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल A 90 डिग्री है। सो इन ABC यू कैन राइट measure angle ACB is equals to, in this angle BAD, reason 90 degree each, ठीक है। चलो, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री मिलने लगा। नाउ अभी आप जरा देखेंगे ABC और BAD में कौन सा एंगल कॉमन मिल रहा है। तो क्या ये एंगल B कॉमन मिल रहा है, ABC B, BAD B, एंगल B इज कॉमन इन बोथ, सो यू कैन राइट एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, दे आर कॉमन एंगल, राइट। इफ दे आर कॉमन एंगल, तो दोनों ट्रायंगल के, इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल मिलने लगे, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स दे आर इक्वल, इट मीन्स दे आर सिमिलर बाई एंगल सिमिलरिटी, बट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ध्यान से लिखना है, ठीक है, जिससे कि हमारा रिजल्ट आने में प्रॉब्लम ना हो। डियर स्टूडेंट्स, ये आप दोस्तों इस बात को खूब अपने माइंड में रख लीजिएगा कि करस्पॉन्डिंग पार्ट होता क्या है, क्योंकि जब तक आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आप सिमिलैरिटी को नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सिमिलैरिटी से रिलेटेड है। सिमिलर तो किस टाइप से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, करस्पॉन्डिंग पार्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसको समझना आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो, पहला करस्पॉन्डिंग पार्ट्स सिमिलर ट्रायंगल के लिखने के लिए पहले ट्रायंगल को आप सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो आप ABC लिख लेते हैं पहले। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ABC को हमने लिख लिया, अब हमें BAD को कंपेयर करना है, राइट। सो A, इस ट्रायंगल का A इस बड़े ट्रायंगल के किस एंगल के इक्वल है हमें नहीं पता है, लेकिन इसका B इस बड़े के B से इक्वल है ये तो पता है। इट मीन्स फर्स्ट लेटर यू डू नॉट नो, बट सेकेंड लेटर B इज इक्वल्स टू B, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B, दिस इज क्लियर। नाउ दिस, इसका C 90 डिग्री, इसका A 90 डिग्री, तो C लास्ट में लिखा है तो आप A भी इसका लास्ट में लिखेंगे। तो आप बताओ इसका कौन सा पार्ट छूट रहा है, एंगल A यू हैव रिटन, एंगल B यू हैव रिटन, इट मीन्स एंगल D नहीं लिखा आपने, सो DBA विल बी। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने का एक तरीका है, ठीक है, समझ में आई बात। नाउ एज दे आर सिमिलर, रीजन यू नीड टू राइट बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। सो इफ दे आर सिमिलर इट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मस्ट बी इन सेम रेशियो। अभी रेशियो में लिख देते हैं। सो AB
मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने का तरीका क्या, जैसे 2 लेटर लेंगे आप, फर्स्ट 2 लेटर इफ यू हैव टेकन, तो इसका भी फर्स्ट 2 लेटर लेंगे, second 2 letter if we are taking, so second 2 letter of this, and first and third letter, so first and third letter, right? So write it, therefore AB upon BD, DB को BD भी लिख सकते हैं, ओके, इक्वल्स टू BC अपॉन BA, यहाँ पे है BA को आप ये भी लिख सकते हैं, BA को हम बस थर्ड लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आपका फर्स्ट रिजल्ट मिल जाएगा। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाइंग AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BD, हमारा फर्स्ट रिजल्ट जो प्रूव करना था, आई थिंक हमने इसको प्रूव कर दिया, राइट? कॉन्सेप्ट समझ में आया? फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकंड रिजल्ट पे। सेकंड रिजल्ट कौन सा है? AC स्क्वायर, मीन्स ये लेना है। तो AC इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ BC एंड DC। इसको प्रूव करने के लिए हम ये दोनों छोटे ट्रायंगल को प्रूव करेंगे। छोटे ट्रायंगल को क्या प्रूव करेंगे? सिमिलर प्रूव करेंगे, जो कि अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? सो वी आर गोइंग टू प्रूव सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड ADC। इस दो ट्रायंगल को लेते हैं और इसके पहले एंगल को हम इक्वल प्रूव करेंगे, देन बाय एंगल सिमिलरिटी वी कैन। और एंगल को प्रूव करने के लिए अभी वहाँ पे हमने आपको एंगल फाइंड करना सिखाया था कि नहीं? क्या बताया था आपको? एंगल D, let us suppose that this angle B is theta degree, so measure of angle D will be 90 minus theta by angle sum property. If this is 90 minus theta, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल, this is 90 minus theta, so of this triangle, this angle will be 90 minus theta। ठीक है? किस तरह प्रूव किया था हमने? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से प्रूव किया था। नाउ let us compare these two triangles and prove they both are similar to each other. In the second part we are discussing. Okay friends? Right. So in the second part we are going to compare triangle ABC to ADC. In triangle ABC and triangle ADC, ये दोनों ट्रायंगल कंपेयर करते हैं। ABC का एंगल A और ADC का एंगल D इक्वल है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, राइट? ABC का एंगल A ना लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, इसको 3 लेटर यूज करो। एंगल BAC इज इक्वल्स टू, मेजर एंगल BAC, क्या मेजर बताया इसको आपने? 90 माइनस थीटा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट? इज इक्वल्स टू एंगल D, दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और दोनों का एंगल C 90 डिग्री है। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। और इसका रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यू नीड टू राइट। ठीक है? ओके, सो देयरफॉर नाउ वी हैव टू राइट डाउन carefully. If you are writing angle ABC, so triangle ABC, if you are writing, it's similar to triangle,
अभी एंगल ए किसके इक्वल, एंगल डी के इक्वल है, तो डी से स्टार्ट करोगे यहाँ पे आप। सी 90 डिग्री है दोनों में, तो सी लास्ट में लिखेंगे, तो डी ए सी आएगा यहाँ पे बाई एंगल सिमिलैरिटी, राइट फ्रेंड्स। चलो, if these two triangles are similar, so their corresponding sides must be in same ratio. It means same as, आपको क्या प्रूव करना है, AC square, right? So this AC upon DC you just take, okay? So AC upon DC equals to BC upon AC, right? So BC upon AC, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आप लिख सकते हो corresponding sides are in proportion, corresponding sides, okay? चलो, now cross multiply, you will get AC into AC is equals to AC into AC equals to BC into DC. Therefore, we got the result AC square is equals to BC into DC. हमारा सेकेंड रिजल्ट प्रूव हो गया, राइट? एज द सेकेंड रिजल्ट प्रूव, थर्ड रिजल्ट वी कैन प्रूव इट easily. Now we are going to prove the third part of this. So as there was not space in our board, so हमने फर्स्ट पार्ट को रब कर दिया, अभी हम थर्ड पार्ट को प्रूव करने जा रहे हैं। और थर्ड पार्ट को प्रूव करने से पहले हमें ये समझना है कि कौन से दो ट्रायंगल कंपेयर करेंगे इसमें, ठीक है? सो थर्ड पार्ट में आपको एज AD स्क्वायर, ये दिस इज AD स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इट मीन्स दिस स्मॉल ट्रायंगल एंड दिस बिग ट्रायंगल यू नीड टू टेक। कौन सा? ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल कंपेयर करेंगे, ठीक है? कैन वी स्टार्ट? राइट, ओके। सो इन ट्रायंगल ADC and triangle ABD, बिग ट्रायंगल ABD, ये कंपेयर करते हैं। तो ADC का एंगल C90 है और ABD का एंगल A90 है, ठीक है? ADC का एंगल C, इट मीन्स एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल, इसका एंगल BAD 90 डिग्री ईच, ठीक है फ्रेंड्स? ओके, दोनों 90 डिग्री थे, इसका C और इसका A, ओके। नाउ नेक्स्ट अदर एंगल इज विच वन इक्वल? if this you are saying this is 90 minus theta, so this will be theta in this angle will be theta by angle sum property, this angle will be theta, right? So angle theta or angle D is common in both, you can say angle D तो दोनों में common है, means angle D of this triangle is equals to angle D of this triangle, they both are common angle, तो दो angles equal मिल गए, therefore you can say both the triangles are similar, but be careful, triangle ADC is similar to triangle ADC is similar to C इसका 90, इसका A 90, so C at the last, so A should be at the last, D is common, so D is second letter, so B D A are similar by angle similarity, right? Okay, means ADC is similar to B
DA. So their corresponding parts must be in same ratio. We are going to prove AD square. AD upon BD is equals to DC upon AD. These two sides we need to take. Therefore, AD upon BD equals to DC upon AD. Cross multiplying, AD square is equals to BD into DC. This we have proved. It is our third result. AD square is equal to BD into DC or CD. So थर्ड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया दोस्तों. इसको प्रूव करने के लिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप ध्यान में रखिएगा, राइट.